Hi everyone. Thank you so much for becoming subscribers of my channel, and people who have not subscribed the channel, you can become a part of the family. Uh, in this channel, we talk about travel vlogs, we talk about travel journeys and experiences. I drive the MG Hector and an Audi A6, but largely for my travel, I use my MG Hector and I share my experiences of the MG Hector time by time on how it has been on various terrains and in various journeys. तो बहुत दिन हो गए हैं मुझे किसी भी ट्रिप पे गए हुए या कोई भी वीडियो शूट किए हुए. आज मैंने सोचा कि आज एक वीडियो आई शुड डेफिनेटली शूट, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट how practical the MG Hector has been for me. It is a feature loaded, fully loaded car, but बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं. इसके अलावा मुझे MG Hector को लिए हुए आई थिंक 5 महीने हो गए हैं, एंड आई हैव ड्रिवन इट फॉर 10,000 किलोमीटर्स. तो आई वुड लाइक टू शेयर अ डिटेल्ड एक्सपीरियंस अबाउट दैट एज वेल. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली लोग पूछते हैं कि यार ओवरऑल 6 महीने बाद या 5 महीने बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है ऑफ द MG Hector, माइलेज वगैरह कैसे देती है, लॉन्ग ट्रिप्स पे कैसी है, सिटी ड्राइव में कैसी है, एंड ऑल दैट. सो आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. And I would also request to all of you that in case you want to kind of get your video shot, you can contact me. आप कोई कार खरीदते हैं, you want me to shoot a review for you, a very practical and honest review, you can contact me on my channel. Comment me and I'll get in touch with you on a phone call, and then we can set up time, we can meet and shoot a video. So that is one thing that I wanted to give a message about. Also, in this video we'll talk about we've got a lot of buttons on the steering wheel. There are so many things out here on the infotainment system, so better is that I talk about all of those one by one so that it is easy for all of you to understand. My MG Hector is a top end MG Hector with a cruise control. It's an automatic petrol, and as I have told in my previous videos, मैं बहुत ज़्यादा cruise control का use करता हूँ, which gives me an excellent mileage. So I will also, if you want, I can talk about how to engage cruise control, what is the best way to do it and all that. तो वो सब भी कर सकते हैं. आप मुझे comment में पूछिएगा कि if you can just let me know if you want such a video. ऑलरेडी मैं एक टॉप स्पीड की वीडियो डाल चुका हूँ. माइलेज की एक वीडियो मैंने अपने एक छोटे से वीडियो, एक बड़े वीडियो के अंदर एक छोटा सा पार्ट कवर किया था. ऑल ऑफ दैट. सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय चैनल अराउंड द माइलेज ऑफ द कार, विच इज बेटर, CVT or DCT, which one is better, and etc. So we will begin with some outdoor shots of the MG Hector, and as I said, guys, I'm not a professional YouTuber. I'm just doing it for time pass, and I like doing it, so that's the reason I'm shooting it. I'm shooting it with my iPhone Pro mobile phone, but I think the picture quality is quite decent. Let me just put the car on. I think it's too hot now. It is March, the beginning of March, और दिल्ली में solid गर्मी होने लग गई है. So I think in about 15-20 days, it will be time that we put on ACs in our rooms as well. तो overall ठीक है, spring season है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. Overall it's a good feeling. I'm personally somebody who likes a warm weather, and I am really loving it. Yes, so बहुत जल्दी कोई ट्रिप बनाता हूँ, and then I will shoot a vlog for that. It is long due. तो यार नेक्स्ट ट्रिप आई थिंक या तो मैं केदारकंठा जाऊंगा फॉर अ ट्रैक, बट जनरली लोग बोलते हैं इट इज अ विंटर ट्रैक, नॉट अ समर ट्रैक. Today's weather is hazy sunshine, 29.4 degrees Celsius in Kapola. तो यार बहुत जल्दी ट्रिप बनाने वाला हूँ. या तो मैं केदारकंठा जाऊंगा ट्रिप पे, बट जनरली लोग बोलते हैं दैट इट इज अ विंटर ट्रैक, बेस्ट इज टू बी डन इन विंटर्स, बट I'll see. I mean, I'll talk to the campers over there. अगर वो बोलेंगे it is a good time also, then I will plan a trip for Kedarkantha. Otherwise, I may go to Manali and do a trek of Triund. And I mean, a 4-5 days trip to Manali will be a good one. I'm not sure if my family is going to be a part of that trip, but even if they're not, then I will go alone and shoot a vlog for all of you. Cool. So as I said, let's give you a walk around the car. The car is in a decent shape without any scratches, like beautiful. And then we'll talk about the interior.
I mean, I don't want to cover all those external parts. यहाँ पर आपको ये वाला लोगो देते हैं, यहाँ पर ट्विन पाइप एग्जॉस्ट है, ऐसा वैसा, ये सब बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा. सो आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ स्पैम यू विद ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल काम की इंफॉर्मेशन वाली बात करेंगे कि यार कौन से फीचर्स हैं जो यूजफुल हैं, कौन से फीचर्स हैं जो यूजफुल नहीं है, और आई मीन कौन से बटन से आप क्या कर सकते हो एंड ऑल दैट. तो उसको हम एक बार डिटेल में बात करेंगे. And let's go do it. Yeah, so we begin with the driver information system and talk about each and everything in detail over here कि कौन सी चीज़ किसका क्या मतलब है, क्या चीज़ से क्या समझ में आता है, etc. So this is the console that you see. ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं ये स्पीडोमीटर कंसोल है. यहाँ पर आपको स्पीड पता चलेगी कार की, कितनी स्पीड पे कार चल रही है, which is simple to understand. ऊपर आपको फ्यूल पता चलेगा, टैंक में कितना फ्यूल है. वहाँ पर फ्यूल का साइन भी है, उसके साथ में ई है और राइट हैंड साइड पे एफ है. तो इससे आपको पता, अगर ये आई मीन टैंक में फ्यूल कम है तो आपको ब्लू लाइट नज़र नहीं आएगी, ये बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगा विच इज़ ग्रेइश. तो अभी कार के अंदर टैंक पूरा फुल है and that is the reason it is showing a tank full. Then is the driving time. The driving time means कि आपने कार को कितनी देर, अभी मतलब जब लास्ट टाइम आपने कार को स्टार्ट किया तो वो कितनी देर से कार स्टार्ट है, वो 21 मिनट्स हो गए हैं. देन इज़ द रेंज ऑफ द व्हीकल. रेंज ऑफ द व्हीकल का मतलब है कि कार इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर्स और चलेगी. उसके नीचे जो आप पी देख रहे हैं वो है पार्किंग. अभी पार्किंग गियर में कार है. पार्किंग के लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं 472, वो अगेन वो रेंज है, इतने टैंक फ्यूल में कितने किलोमीटर कार चलेगी. देन ऑन द राइट ऑफ द पी साइन यू सी 8808 किलोमीटर विच मीन्स दैट द कार इज ड्रिवन फॉर 8808 किलोमीटर. नाउ ऊपर जो जहाँ पर आई मीन दिस साइड इज द टेम्परेचर, it shows the temperature of the car. Then this gauge is of the RPM. So abhi the car is at around 1000 RPM because the car is idle. और कार अभी इग्निशन ऑन है कार का. कार मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने बताया दिल्ली में काफ़ी गर्मी हो गई है, सो यू जस्ट कांट सिट विदाउट एन एयर कंडीशनर. नाउ दिस इज हाउ द ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक और द ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम लुक्स लाइक. Then we talk about the other things that you see on the driver information system. उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाले बटन्स जो स्टेयरिंग के लेफ्ट में हैं, ये वाले बटन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. तो मैं एक एक करके आपको इन सब के फीचर्स और फंक्शंस बताता हूँ. ये जो बटन है ये ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर
इसको चेंज करने के लिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर आया वार्निंग, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आया वार्निंग मैसेज। तो अगर कोई वार्निंग मैसेज कार ने आपके लिए दिया है, जैसे कि कार बहुत देर से आइडल चल रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है एक्सेट्रा, वो वार्निंग मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आपके आपके टायर्स में प्रेशर कम है तो वो भी वार्निंग यहाँ पर आ जाएगी। देन इस बटन से आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं लाइक दिस, और आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है फटीग ड्राइविंग। बेसिकली फटीग ड्राइविंग का मतलब होता है कि कार, लेट्स सपोज आप इसमें फीड कर देते हैं कि एवरी 2 आवर्स में मुझे प्रॉम्प्ट मिलना चाहिए कि मुझे रेस्ट लेना है। तो अगर आप इसमें वो फीड कर देंगे तो वो आपको हर 2 घंटे बाद प्रॉम्प्ट कर देगी। जैसे कि लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं तो हर 2 घंटे बाद आपको प्रॉम्प्ट कर देगी कार कि यू नीड रेस्ट, यू शुड टेक अ ब्रेक फॉर अ टी और अ कॉफी। नाउ फटीग ड्राइविंग वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर जाने के लिए आपको ओके का बटन प्रेस करना है, दिस वन। और अभी मैंने फटीग ड्राइविंग की सेटिंग्स को ऑफ किया हुआ है। मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे उसकी एज सच नीड नहीं लगी थी तो मैंने इसको ऑफ ही रखा हुआ है। अब दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। देन इज ये बता रहा है कि आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे अभी कौन सा सॉन्ग चल रहा है या क्या प्ले हो रहा है। तो अभी मेरा ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है और मैं हाईवे के सॉन्ग सुन रहा था। आगे बढ़ते हैं। Then it tells the status of the Bluetooth. My phone is connected with Bluetooth. Then this is for navigation setup. Honestly मैंने कार का नेविगेशन 1-2 बार ट्राई करने की कोशिश की है बट मुझे उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और मुझे गूगल मैप्स को ही यूज़ करने में ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। सो बेसिकली कुछ एक चीज़ें थी जो सर्च ही नहीं कर पाया एंड आई थॉट दैट इट वाज जस्ट यूजलेस। इट इज़ जस्ट अ फीचर बट इसका रियलिटी में कोई यूज़ नहीं होता जो इनबिल्ट जो कार का नेविगेशन सिस्टम है। सो आई हैव नेवर यूज्ड दिस सिस्टम। देन अगेन ड्राइविंग टाइम 25 मिनट्स, रेंज 471। देन जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो, इस बटन को जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो फिर आपको दिखाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। तो अभी करंटली ये दिखा रहा है कि सारे टायर्स में कितना प्रेशर है, एट द सेम टाइम कितना टेम्परेचर है। अगर इसमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी होगी तो ग्रीन की जगह ये रेड नज़र आने लग जाएगा। देन द अदर ऑप्शन, राइट नाउ विद दिस इन दिस ट्रिप आई हैव ड्रिवन फॉर 132.6 किलोमीटर्स with an average of 29 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो एवरेज है ये फ्यूल एवरेज नहीं है, बेसिकली ये माइलेज नहीं है, दिस इज द एवरेज स्पीड दैट यू हैव ड्रिवन द कार ऑन। तो मैंने 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस 132 किलोमीटर्स में ड्राइव किया है। देन अगेन द सेम ऑप्शन, तो बस इसमें आपको इतने ही ऑप्शन नज़र आएंगे एंड देन लेट्स मूव ऑन। सो गाइज we are over here on this। तो as I said, जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके कंट्रोल्स बेसिकली ये वाले होते हैं। जो ये वाले बटन्स हैं ये सब क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। नाउ टू एक्टिवेट क्रूज कंट्रोल योर कार हैज़ टू बी ऑन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अगर 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम है तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट नहीं होगा। जब आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले जाते हैं तो आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू दिस बटन। आप देखेंगे जब मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पर आया क्रूज कंट्रोल ऑन, लेकिन अभी भी ये अपने आप कार इस स्पीड पे नेविगेट नहीं करेगी। आपको नेविगेट कार को स्पीड पे करने के लिए सेट को प्रेस करना पड़ेगा। तो जितनी भी स्पीड पे आप उस टाइम होंगे वो ही सेम स्पीड सेट हो जाएगी। नाउ लेट्स सपोज आपको स्पीड ज़्यादा करनी है, सो 40 पे आपने सेट किया और अब आप 50 पे चलाना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ऊपर करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, दोबारा ऊपर करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सो बेसिकली आप इसको अगर 5 टाइम्स इसको बटन को ऊपर प्रेस करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। इन केस आपको लगता है कि आपको स्पीड कम करनी है तो आप ब्रेक करके भी स्पीड कम कर सकते हैं, लेकिन आप इस बटन के थ्रू इसको नीचे प्रेस करके भी स्पीड को कम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एकदम से कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई जहां पर आपको क्रूज कंट्रोल को कैंसिल करना है तो वन सिस्टम इज दैट यू ब्रेक द व्हीकल और क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज दिस बटन इज फॉर कैंसिलिंग द क्रूज कंट्रोल। इसको प्रेस करेंगे तो क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज लेट्स सपोज आप 40 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं
या मान लीजिए 50 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी एंड द कार्स क्रूज कंट्रोल सिस्टम गॉट डीएक्टिवेटेड, लेकिन अब आगे रास्ता क्लियर है और दोबारा से आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस बटन को एक बार फिर से ऊपर करना पड़ेगा और कार आपको ऑटोमेटिकली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ले जाएगी, या फिर जो लास्ट सेट स्पीड जहां पर आपने ब्रेक लगाया था उसी स्पीड पे आपको ले जाएगी। आई होप ये जो फंक्शनैलिटीज हैं ये क्लियर होंगी, आपको नहीं होंगी तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देन दिस वन इज द हॉर्न बटन, द हॉर्न एरिया, जहां पर एंड इट इज़ वेरी इजी टू रीच, इट इज़ नॉट लाइक आपको स्टेयरिंग से अपना हाथ हटा के करना है, तो इन केस लाइक इफ यू होल्डिंग इट लाइक दिस यू कैन ईजिली प्रेस। यस, मैंने हॉर्न चेंज करवाया हुआ है, इसके अंदर जो कंपनी फिटेड जो स्टॉक्ड हॉर्न आता है वो बहुत ही मारुति वैन टाइप का है एंड इट डजंट सूट द कार्स पर्सनैलिटी एट ऑल। तो if you're buying an MG Hector, the first thing that you should go and do is get your horn changed, otherwise बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। Moving on to the right hand side, this again is one, so इसमें एक तो है ये वॉइस कमांड का सिस्टम। सो MG का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, वन इज़ थ्रू द टच पैनल, आप इसको टच करके यूज़ कर सकते हो। Then the other thing is that you can also give a voice command to the MG. So let's suppose I'll give a voice command over here. Hello MG. I'm here. Please set the temperature to 25. Temperature is set to 25 degrees Celsius. So MG ने टेम्परेचर 25 पे सेट कर दिया। So कभी कभार ये होता है कि आप लाउड म्यूजिक सुन रहे होते हो और आप अगर फिर उस टाइम पे हेलो MG बोलोगे तो MG रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी एंड इट विल नॉट रिस्पॉन्ड। फॉर दैट यू हैव दिस बटन, इफ यू प्रेस द बटन एंड इफ यू Hi, how can I help? प्लीज सेट द टेम्परेचर टू 26। Temperature is set to 26 degrees Celsius. तो आपने देखा इस बटन से आप प्रेस करेंगे तो आप हेलो MG वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ बटन प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। देन इज दी SRC बटन। SRC बटन बेसिकली मुझे फुल फॉर्म नहीं पता इसकी क्या होती है, लेकिन ये आपका जो म्यूजिक सिस्टम है या जो भी आप इस पे सुन रहे हैं उसको टॉगल करने के लिए। सो लेट्स सपोज मैं SRC को प्रेस करूंगा तो इट विल स्विच टू FM। राइट नाउ आई एम कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ in my MG, that's the reason it's showing Bluetooth music। तो SRC का ये फंक्शन होता है, अगर आपको Bluetooth से FM पे जाना है, FM के दूसरे चैनल पे जाना है, so you can use the SRC button। These are the buttons for the volume control, plus and minus। This is the button for number 1 disconnecting the call, or if you're listening to music you can mute your music system by pressing this button and also unmute it through this button। This button is basically to change channels on FM, or if you're listening something on Spotify, तो आप सॉन्ग्स इससे स्विच कर सकते हो, इससे प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हो, इससे नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हो। इस वाले बटन से आप अपनी कॉल्स को पिक कर सकते हो। सो दीज आर द कंट्रोल्स ऑन योर राइट हैंड साइड। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, ये सब बहुत इजी रीच में है और कार को ड्राइव करते हुए आप इन सारे फंक्शंस को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, उसमें बिल्कुल भी चैलेंज नहीं आता है। तो बहुत अर्गोनॉमिकली वाइज ये बहुत ही सूदिंग है, बहुत रीचेबल है और ये काफ़ी इंट्यूटिव है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। देन मूविंग ऑन टू दीज बटन्स विच यू सी ओवर हियर, ये वाला जो बटन है ये कार के बूट को खोलने के लिए है और इसी से ही आप बूट को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये कि अगर आप कार के अंदर हैं और कार अगर पार्किंग में नहीं है तो आप इस बटन से बूट को नहीं खोल पाएंगे या बंद कर पाएंगे। देन दिस इज द फॉर इल्यूमिनेशन के अंदर आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, या फिर जो आपका जो अंदर की लाइट्स हैं वो आपको कितनी ब्राइट या कितनी लेस ब्राइट चाहिए, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। ये है हेडलैम्प लेवलर। सो लेट्स सपोज
आप पीछे आपने बहुत सारा लगेज रखा हुआ है या फिर पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप इसको लेवल कर सकते हैं। अगर पीछे कोई बैठेगा तो इसका मतलब ये है कि पीछे से कार थोड़ी सी नीचे झुक जाएगी और इसलिए फिर आपको यहाँ से इसको लेवल करना पड़ेगा। देन these are the controls for the side view mirrors। तो अगर आप लेफ्ट में करते हैं, लेफ्ट में करने के बाद आप इस बटन से इसको सेट करेंगे। सो मैं आपको ये बेसिकली लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए है। योर जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनको सेट करने के लिए है। ये बटन है बेसिकली आप प्रेस करेंगे तो जो आपके साइड व्यू मिरर्स हैं वो फोल्ड हो जाएंगे और अनफोल्ड भी इसी बटन से होते हैं। ये है सब लाइट्स के कंट्रोल्स, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं इसके बारे में। आई मीन देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट एंड दिस इज हाउ these are the functions basically of this side of the panel. Moving over here, start stop button इधर दिया हुआ है एंड वाइपर के कंट्रोल्स आप इधर देख सकते हैं। ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये हजार्ड लैंप ऑन करने के लिए है। देन वी टॉक अबाउट दी अदर वेरी वेरी क्रूशियल बटन्स हो गई। तो ये गियर लीवर है एंड गियर लीवर में आप देख सकते हैं ये पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है और स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स में आप जब करते हैं तो कार मैनुअल मोड पे बेसिकली आ जाती है। देन द अदर वेरी इंपॉर्टेंट वंस आर ओवर हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ये जो बटन आप देख रहे हैं जो भी करंटली एंगेज्ड है, ये है पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। तो इसके अंदर वो लीवर नहीं, इसको आप पुल करते हैं एंड फिर कार ब्रेक करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत अच्छा भी है और कन्वीनियंट भी है, लुक्स वेरी क्लीन एज वेल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है एंड आई मीन इसको बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं, वो आपके साथ में अगर बैठे हुए हैं तो चलती हुई कार में इस बटन को प्रेस ना करें। दिस वन इज़ द ऑटो होल्ड बटन। सो ऑटो होल्ड बटन का काम ये होता है, लेट्स सपोज आप एक सिटी में ड्राइव कर रहे हैं और आपको बार बार रेड लाइट्स पे कार को रोकना पड़ रहा है, तो आपने अगर इसको एंगेज किया हुआ है इस बटन को, तो फिर आपको अपने पाँव को ब्रेक पे रखने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कार पहुंचेगी वहां पर ऑटो एंगेज हो जाएगा ये ऑटो होल्ड का बटन, और जब आप एक्सेलरेट करेंगे उसके बाद ही कार मूव करेगी। आप चाहे कार गियर में लगी हुई है चाहे नहीं लगी हुई, द कार विल नॉट मूव जब तक आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे। दिस वन इज द बटन विच विल असिस्ट यू फॉर पार्किंग एंड दिस इज द 360 डिग्री कैमरा बटन विच बेसिकली इज इफ यू पुट इट ऑन। लेकिन इसके लिए आपकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा ऑन हो गया है। This is the perfume which was given by MG. It's a very nice fragrance. It's the vintage aroma. बहुत अच्छा परफ्यूम है। So overall these are the buttons। ये साथ में जो इधर आप buttons देख रहे हो ये सब काफ़ी क्लियर है, एक्सप्लेनेटरी हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बटन्स हैं। ये है कार को अनलॉक और लॉक करने का, ये चारों पावर विंडोज़ के बटन्स हैं। और ये वाला जो बटन है ये बेसिकली आपके पावर विंडोज़ को रोल डाउन होने से रोकेगा। इन केस आपके साथ में बच्चे हैं, आप इसको प्रेस कर सकते हैं, तो आपके अलावा कोई भी दूसरा बंदा विंडोज को रोल डाउन नहीं कर सकता। दिस इज हाउ इट लुक्स ओवर हियर। दीज बटन्स आर ऑफ द कंट्रोल्स ऑफ द सनरूफ एंड द लाइटिंग एक्सेट्रा। तो आई मीन यहाँ आप देख सकते हैं इस बटन से हम सनरूफ को खोल सकते हैं। सिमिलरली इसको अगर हम आगे पुश कर देंगे तो सनरूफ बंद हो जाएगी। नाउ ये वाला जो बटन है, ये जो सनरूफ का कर्टन होता है उसको आगे और पीछे करने के लिए आप देखिएगा। अभी जो कर्टन है वो जो कर्टन है इट विल कम ओवर द सनरूफ। Similarly this button will open the curtain on the sunroof। इसको 2 बार प्रेस करना पड़ता है, एक बार जाके ये रुक जाता है, then you have to press it again। ये वन टच नहीं है, that's one thing which needs improvement। Then this is the button to put the lights on। ये माइक है और ये सनग्लास होल्डर है। ये लाइटेड वैनिटी मिरर है दोनों साइड पे।
Yeah, so this is how it is. Now talking about the infotainment system and the features over here. तो मैं एक बार इसको, हाँ जी, so this is how it is. This is the main page of the system. Now this talks about, it has a 4G inbuilt in it. It has a SIM card. ये अभी टाइम बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, और आपका जिस एरिया में आप हैं वो बता रहा है. देन इट टॉक्स अबाउट जिस नाम से आपने रजिस्टर किया हुआ है अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर, इट विल शो यू दैट. सो आई हैव मेंशन्ड अव्यान एंड अनाया, बोथ ऑफ देम आर माय किड्स, एंड इट टेल्स द डेट एंड द डे टुडे, एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ. दिस इज ब्लूटूथ पे अभी क्या चल रहा है. दिस इज द GPS सिस्टम विच आई सेड आई डिड नॉट फाइंड इट गुड एंड हेंस आई डोंट यूज इट. देन दिस इज द सेटिंग फॉर द FM. दिस वन इज द सेटिंग्स फॉर फोन. सो हमने क्लिक किया, इट विल ओपन अप ऑल ऑफ द कॉन्टैक्ट लिस्ट इन माई फोन, द डायल पैड एक्सेट्रा. तो यहाँ पर रिसेंट सब पता लग जाएंगे, कहाँ कहाँ पर कौन से नंबर्स पे आपने बात की एक्सेट्रा. ये कीपैड अगेन, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल गई है. देन वी गो बैक. देन इज द एप्पल कारप्ले. सो एप्पल कारप्ले को यूज करने के लिए आपको फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम थ्रू दिस कनेक्शन ओवर हियर. यहाँ पर आप वायर इंसर्ट कर देंगे, एप्पल की जो चार्जिंग केबल होती है उसके साथ आप एप्पल कारप्ले यूज कर पाएंगे. देन इज द एंड्रॉयड ऑटो, सिमिलरली उसको यूज कर सकते हैं. देन इज द आई कॉल बटन. आई कॉल बटन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जनरली इसके बारे में लोगों को पता नहीं है. तो कार में अगर आपने आई कॉल प्रेस कर दिया है, you will get a call from the MG customer care in about 4 to 5 minutes. I have tried it myself, और मेरे पास 4-5 मिनट में जो सिस्टम में जो सिम है उस सिम पे मेरे पास कॉल आ गया था MG से, एंड दे वांटेड टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है. देन दिस इज द गाना ऐप. दिस इज द प्लेस वे यू कैन स्टोर योर सॉन्ग्स एक्सेट्रा. देन इज द इनबॉक्स. इनबॉक्स में बेसिकली आपके मैसेजेस आते हैं, not your phone messages but messages of the Hector के आपका ट्रैवल प्लान क्या है, कोई मैसेज आप इसमें आपके लिए है या नहीं है, तो वो सब इसमें आता है. we'll exit this one. then is the settings button. इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो इसको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ. देन इज द टायर प्रेशर. टायर प्रेशर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टायर प्रेशर का पूरा सिस्टम दिखा देगा, लाइक अभी क्या स्टेज है सारे टायर के प्रेशर्स की. इससे बाहर निकलते हैं. देन विल टॉक अबाउट दिस बेसिकली इज अगेन दैट सेम फंक्शन जहां पर इसको प्रेस करेंगे यू कैन गिव अ कमांड टू MG. देन दिस इज द करंट टेम्परेचर, जिसपे हमने टेम्परेचर को सेट किया हुआ है. ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है. सो दिस इज राइट नाउ ऑन AC. आउटसाइड इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर को कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए है. तो वन वे इज दिस, वन वे इज जस्ट बाय प्रेसिंग दीज बटन्स you can increase or decrease the temperature. Then is this is the flow of air. ये कम कर देंगे, अभी मिनिमम पे है 1 पे, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं. तो फ्लो काफ़ी अच्छा है. 1 पे करने पे भी कार बहुत अच्छे से चिल्ड हुई है, तो pretty decent this is. Then these are the options to select कि आपको where do you want the flow of air. अगर आप ये प्रेस कर देंगे तो मुझे फीट पे और मेरे फेस पे एयर का जो प्रेशर है वो मिलेगा. दिस इज़ कि आपको सिर्फ फीट पे अगर चाहिए तो ये आपको विंड स्क्रीन पे एंड फीट पे, या आपको फ्रंट विंड स्क्रीन पे ही आपको एयर प्रेशर जो AC का प्रेशर है वो AC का जो एयर है वो मिलेगा. देन इज़ दिस बटन इज़ बेसिकली कि कार की जो अंदर की एयर है वही सर्कुलेट हो. इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर का जो फ्रेश एयर है उसको भी कार के अंदर अलाउ करेगा. और लेकिन इसके साथ अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बाहर की स्मेल भी आती है. वो फिल्टर होनी चाहिए बट वो होती नहीं है, एंड यू गेट दैट स्मेल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. देन दिस इज टू पुट द एयर कंडीशनर ऑफ. दिस इज हाउ द एयर कंडीशनर सेटिंग्स आर. वी गो बैक.
Most important is that I talk about the settings function. So settings function में बहुत सारे options हैं. मैं setting को press करता हूँ and then we'll talk about each one of them. WLAN is basically if you want to connect an external Wi-Fi. One second. WLAN is कि अगर आपको बाहर से कोई वाईफाई कनेक्ट करना हो तो आप वो कर सकते हैं. कोई एक्सटर्नल वाईफाई इफ़ यू वांट टू कनेक्ट देन यू कैन डू दैट. मुझे एक्चुअली नहीं करना. तो लेट्स सपोज आप कहीं हैं और आप घर के पास में अपना वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं. यू कैन ईजिली डू इट बाय पुटिंग इट ऑन ओवर हियर. जैसे आप इसको ऑन करेंगे ये आसपास के सारे वाईफाई के जो ऑप्शन है आपको दिखा देगा. देन यू कैन बाय प्रेसिंग बाय एंटरिंग द पासवर्ड यू कैन गेट एक्सेस टू द वाईफाई. देन इज द ब्लूटूथ फंक्शन, द सेटिंग. अभी ब्लूटूथ ऑन है इसलिए ग्रीन नज़र आ रहा है. कौन से डिवाइस के साथ कनेक्टेड है वो नज़र आएगा. ये वाला डिवाइस है अव्यान एंड अनाया और ये कौन से डिवाइस के साथ कनेक्टेड है. इट इज़ iPhone 11 Pro मनोज इसके साथ कनेक्टेड है. एंड देन इट विल गिव अस other devices also if you want to connect. Then this is the equalizer setting. Equalizer setting is basically the setting for your infotainment system and your music system. यहाँ से आप जो साउंड सिस्टम का जो बेस है इसको आप बड़ा और घटा सकते हैं. ये मिड रेंज है और ये ट्रेबल है. तो ये मेरे मिड रेंज और ट्रेबल हाईएस्ट पे है. मैंने लाउडनेस को ऑन किया हुआ है. सो द सिस्टम इज़ लाइक जितना वॉल्यूम मैंने किया है उस वॉल्यूम पे चलेगा. देन इज स्पीड वॉल्यूम कॉम्पेंसेशन. इसको मैंने ऑफ किया हुआ है. ये बेसिकली ये फंक्शन होता है कि आपकी कार आपने अगर स्टार्ट की है तो जो भी आपका वॉल्यूम है वो उस वॉल्यूम पे कार नहीं चलेगी. कार लो वॉल्यूम पे चलेगी. लेकिन आप जैसे ही स्पीड कार की बढ़ा देंगे तो वो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. देन this is the function to basically set the sound of your in the inside of your car. तो अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो आपको सिर्फ पीछे ही साउंड आएगी. अगर आप इसको आगे कर देंगे तो सिर्फ आगे के स्पीकर्स में आएगी. आप लेफ्ट में करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट के स्पीकर्स में, राइट करेंगे तो राइट के स्पीकर्स में. मैंने इसको सेंटर में किया हुआ है. सेंटर में ही करने से इसमें बेस्ट जो साउंड सिस्टम जो साउंड क्वालिटी है वो आती है. तो ये हो गया साउंड सिस्टम के बारे में. देन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम. इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं. 1, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मीडिया मतलब जो भी आपने ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है तो उसका कितना वॉल्यूम आपने अभी किया हुआ है. तो मैंने उसको अभी लो पे रखा हुआ है. देन इज फोन. तो अगर आपका कोई फोन आता है तो कितने वॉल्यूम पे वो पिक होगा. देन TTS, बेसिकली आई डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ TTS, लेकिन ये बेसिकली जो कार आपको प्रॉम्प्ट देती है जैसे वेलकम अव्यान अनाया मेरे इसमें बोलती है तो वो जो या फिर आपके सिस्टम में आपकी कार में टायर्स का प्रेशर कम है तो वो जो वार्निंग मैसेजेस हैं ये उसका साउंड बेसिकली होता है. देन इज द डिस्प्ले फंक्शन. डिस्प्ले इज बेसिकली द डिस्प्ले ऑफ दिस एंटायर फंक्शन, दिस एंटायर इंफोटेनमेंट सिस्टम. इसकी ब्राइटनेस इट हैज़ अ डे ऑप्शन, अ नाइट ऑप्शन एंड एन ऑटो ऑप्शन. तो बेसिकली ये होता है कि जब आप रात में चला रहे होते हैं कार तो अगर ये डे मोड पे है तो ये पूरा वाइट इल्यूमिनेट होगा जिससे आपको रात में प्रॉब्लम हो सकती है ऑफ डिस्ट्रैक्शन. तो दैट्स द रीज़न मैंने इसको ऑटो पे किया हुआ है. जैसे ही अंधेरा होगा ये ऑटोमेटिकली पूरा ब्लैक हो जाएगा जिससे आपको आंखों पे नहीं रोशनी पड़ेगी और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. देन इज द डेट एंड टाइम. दिस इज सेट टू अ 12-hour टाइम एंड ऑटोमेटिक टाइम जोन मैंने डिसेबल किया हुआ है. इट गिव्स यू एन ऑप्शन, आप डेट को और टाइम को इससे सेट कर सकते हैं. देन इज द व्हीकल सेटिंग्स. व्हीकल सेटिंग्स के अंदर कार विंडो रोल डाउन. तो आप विंडोज़ को रोल डाउन कर सकते हैं थ्रू योर कार कीज़. अगर आप अपनी कार की के ऊपर जो अनलॉक वाला बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सनरूफ और चारों विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगे. तो ये ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है. ये काफ़ी काम का फंक्शन है. आप गर्मी में आप धूप में आपकी कार पार्कड है और आपको कार निकालनी है तो आप विंडोज़ को लो डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन देन ड्राइव द कार. वंस यू सिट इन द कार यू कैन पुट द AC ऑन एंड एक्सेट्रा. देन इज़ द कार लॉक फंक्शन. एनेबल डोर लॉक. सो एक बार आप जैसे ही अनलॉक करेंगे तो चारों के चारों डोर्स अनलॉक हो जाएंगे. अगर आप इस ऑप्शन को करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक होगा. देन इज ऑटो अनलॉक. इट ऑटोमेटिकली अनलॉक्स द व्हीकल व्हेन द व्हीकल इज पावर्ड ऑफ. जैसे ही आप कार को बंद करेंगे तो सारे के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे. डोर ऑटो लॉक. जैसे ही आप
व्हीकल को अप्रोच करते हैं, जैसे ही आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को ड्राइव करेंगे, अपने आप ही सारे के सारे दरवाजे लॉक हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। अगर आपके कार में बच्चे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कार स्पीड पे तो दरवाजे अपने आप नहीं खुलेंगे जब तक आप कार की स्पीड को कम नहीं करते हैं। देन इज वॉक अवे लॉक। अगर आप कार से दूर जाते हैं और आपके पास में कीज़ हैं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे दरवाजे लॉक हो जाएंगे। सिमिलरली आप कार के पास आते हैं तो सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। These are the functions. Approach, unlock. Again, as I said, कि आप जैसे ही कार के पास आएंगे तो और आपके पास में की फॉब है तो सारे के सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। Talking about user settings, this basically is the registration number, emergency contact person का नाम, emergency contact person का number, then is mood light. इसमें basically करीबन 8 मूड लाइटिंग लाइट्स होती हैं। एम्बियंट लाइटिंग जो होती हैं वो 8 कलर्स में होती हैं। तो आप या तो कांस्टेंट मोड कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो कौन से कलर का आपको लाइट चाहिए, या फिर आप रैंडम मोड कर सकते हो। रैंडम मोड के अंदर टाइम टू टाइम ये कलर्स चेंज करते रहेंगे और इन सारे कलर्स में से कूल ब्लू, वार्म ब्लू, ग्रीन, वाइट, एम्बर रेड, पर्पल, येलो में से कोई भी जो कलर्स है वो रैंडमली आता रहेगा। ये बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, जितना इसको फ्रीक्वेंट कर देंगे उतनी फ्रीक्वेंटली ये चेंज हो जाएगा। देन इज द स्किन सेटिंग। स्किन सेटिंग इज बेसिकली द डिस्प्ले दैट यू सी। इसमें कैसा कलर चाहिए आपको, तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन आते हैं। वन इज आई स्मार्ट ग्रे, डायनामिक ग्रे एंड क्लासिक ब्लू। एंड देन इज द USB स्टोरेज। अभी USB से कुछ भी स्टोर नहीं किया हुआ है, बिल्कुल खाली है, देयर इज नथिंग। देन इज फैक्ट्री रीसेट। आप फैक्ट्री रीसेट प्रेस कर देंगे तो सारा सिस्टम फैक्ट्री रीसेट पे चला जाएगा। देन दिस इज द अपग्रेड। अगर कोई अपग्रेड आया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम उस जैसे फ़ोन अपग्रेड होते हैं वैसे ही इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अपग्रेड हो जाएगा। तो मैंने अपग्रेड प्रेस किया, अभी वो देख रहा है कि कोई अपग्रेड तो नहीं आया हुआ है एंड वो बोल रहा है योर सिस्टम इज़ करंटली ऑन द लेटेस्ट वर्जन। Then is activation. I have never used this. ये पता नहीं क्या है तो मैंने ये नहीं यूज़ किया। ये है यूज़र मैनुअल जो कि पूरा ई कॉपी है। तो I mean आप सारी सेटिंग्स को यहाँ जाके आप समझ सकते हैं। सिस्टम पे ही सारा डिस्प्ले हो जाएगा। Then is about MG, the copyright, privacy policy, service terms, etc, etc, etc. Then is this button is basically to let's suppose इट इज़ विंटर टाइम एंड कार में ज़्यादा लोग हैं और पूरा आपका जो विंड स्क्रीन है मिस्टी हो गया, तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, ये मिस्ट को हटा देगा। सिमिलरली दिस इज़ द डिफॉगर, दिस इज़ द बटन फॉर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, दिस इज़ द बटन फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड दिस इज़ द बटन टू पुट इट ऑफ एंड ऑन। एंड ऑल्सो जैसे एप्पल के अंदर जो सेंटर में बटन आता था ये बटन उसका भी काम करता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे हैं स्क्रीन में और आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस कर दीजिए एंड यू विल बी आउट। This is the whole, so basically we've covered all of the buttons and usage etc of the infotainment system, driver side information system, controls on the steering, cruise controls etc. All of this is fine. Now what are the features that are really useful and what are the features that are not useful? ऑनेस्टली जब आप MG लेते हो तो शुरू के 3 या 4 दिन जब भी कोई आपकी कार में बैठता है तो यूज़ बेसिकली आप वॉइस कमांड्स यूज़ करते हो और इसके अलावा आप वॉइस कमांड्स हार्डली ही यूज़ करते हो, बिकॉज जितनी देर में आप बताओगे हेलो MG ये कर दो वो कर दो, इतनी देर में आपके पास सब कुछ, क्योंकि अर्गोनॉमिकली बहुत वेल डेवलप्ड है, वेल सूटेड है, तो आप अपने आप से ही सारे कंट्रोल्स कर सकते हो। AC का इतना सिंपल है तो विच यू कैन डू, ड्राइवर्स विंडोज़, passenger side window roll down etc, all of these functions are very easy. Similarly controlling the sunroof, it is just over here, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉइस कमांड एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत ही ओवररेटेड है एंड इट इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। देन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग एक अच्छी इंफॉर्मेशन है टू नो एंड आई मीन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर टायर प्रेशर कम है तो डेफिनेटली आपको प्रॉम्प्ट आ जाता है और आप जाके किसी भी गैस स्टेशन से टायर प्रेशर ठीक करा सकते हैं, आई मीन हवा भरवा सकते हैं। तो बेसिकली ये है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, नॉट इलेक्ट्रॉनिक बट जो कार के अंदर डिजिटल स्पीडोमीटर है
वो बिल्कुल मिसिंग है। आपको स्पीड सिर्फ इस गेज में नजर आएगी, इसके अलावा देयर इज नो वे टू नो द स्पीड। जनरली इन अ कार विच इज वर्थ 21 lakhs देयर शुड बी अ डिजिटल स्पीडोमीटर विच इज वन फीचर दैट आई रियली मिस। इसके अलावा आपको कार की माइलेज भी नहीं पता लगती है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और वो MG को डेफिनेटली फिक्स करना चाहिए कि करंट जो माइलेज है वो कितनी है कार में। वो आपको सिर्फ आई स्मार्ट ऐप से पता चलता है, आपकी हर ड्राइव की जो माइलेज है वो पता चलेगी, बट इसके अलावा आपको और कुछ, आई मीन देयर इज नो provision on the driver information system to know that, which is again a very one feature which is dearly missing in the car and on which MG should work. So overall, yeah, this is what it is. You would have seen already a lot of videos jahan par andar ka space etc has been covered. I'm not going to talk about that. For sure, this is a very spacious SUV, very premium overall. Generally people talk about कि इसमें इसके plastics ज़्यादा better नहीं है, hard plastic and all that, but yeah, that's fine. I mean, you can't have leather everywhere and it's like it really doesn't matter. देखने में सुंदर है, hard plastic है, soft plastic है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने में overall the look and feel of the car is very beautiful. So I mean, the interiors are black. 2021 वाली के अंदर grey beige interiors हैं, champagne color के interiors हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं, and I might upgrade to that as well in some time. So yeah, I think we should अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो प्लीज़ बताना। हाँ, एक चीज़ और, जो म्यूज़िक सिस्टम है उसकी साउंड क्वालिटी फैंटास्टिक है, वो बहुत अमेजिंग है। इन्फिनिटी का जो म्यूज़िक सिस्टम आता है, ये इन्फिनिटी का म्यूज़िक सिस्टम है, इसके ट्विटर्स लगे हुए हैं एंड सारे स्पीकर्स भी इन्फिनिटी के हैं। ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ साउंड सिस्टम इज़ वेरी गुड. इट इज़ नॉट equivalent to a Bose system which is in my Audi or the Bose system that you get in other cars, but ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है. I would rate that 9 on a scale of 10, and when the music is loud, overall the quality of the voice, vocals, music, it is just fantastic. So there are no complaints at all. Cool, thank you very much. ये वाला वीडियो काफ़ी elaborate हो गया है guys, और अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ डेफिनेटली बताइएगा. मेरी कार बहुत ही सॉलिड एवरेज देती है. इन द सिटी इट गिव्स अ माइलेज ऑफ मोर देन 11, एंड ऑन लॉन्ग ड्राइव्स आई टेक आउट around 13 to 14 kilometer per liter, because as I said I use extensively the cruise control function, जो कि बहुत amazing mileage deliver करता है. That's about it guys. एक चीज़ और, this one is not auto dimming. ये 2021 के अंदर auto dimming आ गया, but this one is the natural manual mirror which is we generally find in like the cars which are priced lower. तो ये अब I think 2021 में fix हो गया, तो no complaints about that. Cool. तो गाइस बहुत बोला हूँ, बहुत गला सूख गया है बेसिकली लगातार बात करते हुए. तो ओवरऑल आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग around the information system and the driver the infotainment system and the driver information system and the buttons around everywhere etc. Sometimes you just sit and you get confused कि यार कौन सा बटन किस चीज के लिए. तो ओवरऑल I think एक चीज मैंने कवर नहीं की, which is the traction control button, which is just on the left of the infotainment system. So that's it. Yeah, pretty good. Thank you very much, guys. If you have, if you found the video useful by any chance, then please give it a thumbs up. आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, and it will just motivate me to basically bring good content for you and make some good videos for all of you. Yeah, so if you have really liked it, become a part of the family. Let's grow the family, make it big, and with your support I think we can make the channel really bigger. Next video is going to be around travel, which I'll go for very soon. And I said, if you've liked it, please give it a thumbs up. Don't hesitate. कुछ जाएगा नहीं आपका, आप अगर thumbs up करेंगे तो. और अगर if you've not liked it, so please you may dislike the video. That's absolutely fine. That is also a way to know what is not right, and I will improve the content in future. Cool. So time to go pick up my wife. She would be waiting for me, and this has been a great afternoon, and thank you very much for being a lovely audience, all of you.